So we should now start our class. Today we will talk on arsenic poisoning in animals. Since arsenic is one of the important Yes. poison to be seen in the livestock, बहुत frequent cases मिलते हैं humans में भी और animals में भी regarding arsenic poisoning. ठीक है, इसके सोर्स बहुत हैं जो डोमेस्टिक यूज में आते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें जो डोमेस्टिक यूज में आते हैं उसमें आर्सेनिक पाया जाता है और इसी की वजह से आर्सेनिक टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है बोथ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक related to toxicopathology. So first of all, you should know about the compounds of arsenic which are toxic. So in nature there are different kinds of arsenic compounds which are present in different chemicals. Yes, sir. Say for example, there are oxides of arsenic, there are sulfides of arsenic, there are copper compounds of arsenic, there are various organic compounds. So if you see the arsenous oxide, that is the oxides of arsenic, these are most toxic. These are Yes, sir. most toxic and very popular with the name of Most. Sankhya or Somalkar. Commonly they are called Yes. as, these arsenic trioxide are called as Sankhya or Somalkar. Similarly, sulfides of arsenic are used in coloring agent, fly paper. इन चीजें में यूज होता है. Say for example, arsenic trisulfide, arsenic disulfide. Trisulfide is also called as yellow orpiment or hurtle. Similarly, arsenic disulfide is called as red real agar or mansil. तो ये कुछ ऐसे कॉमन चीजें हैं जो आपके आसपास मिलते रहते हैं. Similarly, copper compounds of arsenic are used in coloring agent. Say for example, copper arsenite or copper acetoarsenite. They are used as Scheele's green color or in making of Paris green color. So these compounds are main source of arsenic toxicity. So as I was telling you, arsenic toxicity is very frequent since it is found in both soil, water and also in air. So it has ubiquitous presence. It can be seen everywhere in the environment, in the soil, Yes, in the water and in the air. And they are most commonly used in production of glasses, semiconductors, as preservatives of wood and hide, additives of metal alloys. They are also being used as weed killer, pesticides, rodenticides, and chemical warfare. So from this slide, you must have came to know that arsenic is widely used in day-to-day life, and therefore they became a common source of intoxication. So how the animals or humans can be intoxicated? They can be intoxicated through use of indiscriminate use of such drugs like ectoparasites, rodenticides, pesticides, blood parasitic drugs, or some skin tonics which also contain arsenic. तो अगर आप किसी एनिमल्स में एक्टोपैरासाइट का इस्तेमाल कर रहे हो तो इट मे कंटेन आर्सेनिक. उसी तरीके से ब्लड पैरासाइट्स हीमोप्रोटोजोन्स के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसमें भी हो सकता है आर्सेनिक. बहुत सारे टॉनिक से भी होते हैं आर्सेनिक, मगर इनसे नुकसान इसलिए नहीं होता कि आप जुडिशियस यूज कीजिए. जितना प्रिस्क्राइब डोज है, जितना प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है उतना यूज करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा. बट इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने लगे, ओवर यूजिंग करने लगे, ज्यादा ड्रग देने लगे, ओवर डोजिंग करने लगे, ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. अदर देन मेडिसिनल सोर्स, देयर वाटर एंड हर्बेज कंटेमिनेशन. अब जानते हो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल. तो इस तरह से अगर वाटर कंटेमिनेट हो गया तो एनिमल कैन ड्रिंक दिस कंटेमिनेटेड वाटर एंड गेट इंटॉक्सिकेटेड. फिर आप ये भी जानते हैं कि आर्सेनिक आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव या हाइट प्रिजर्वेटिव.
तो अगर किसी प्रिजर्वेटिव में आर्सेनिक प्रिपरेशन लगाया गया है और एनिमल्स की ये नेचर होता है लीकिंग करना, अगर वो लीक करना शुरू करेगा तो आर्सेनिक उसकी बॉडी में जा सकता है। Other than this, arsenic is also used as feed additives in prescribed dose. अगर overdosing करने लगोगे तब भी arsenic body में बढ़ जाएगा. So these are some of the compounds and materials where arsenic are found and the sources by which animals basically are intoxicated. So you can see it is present in paints, it is present in preservatives, it is present in many drugs. So it is very common that the animals may be intoxicated by arsenic. Next is factors affecting toxicity. Not all animals are affected in a similar manner. Some are more susceptible, some are less susceptible. Other than species, the condition of the body, the status of the animals also decide where toxicity is going to occur or not. So in detail, if you see, herbivores are most affected. Herbivores are most affected. Next to herbivores are dogs and cats. And the least affected animals is poultry and pigs. Poultry and pigs are least affected. Dogs and cats are more affected. And herbivores are most affected. The toxicity also depends on the compound of arsenic. If it is in the form of arsenite, it is more toxic. But if it is in the form of organic arsenicals or arsenate, it is least toxic. Arsine, oxidation state of arsenic, is most toxic, and organic arsenicals is the least toxic. So the oxidation state of the arsenic also decides the toxicity in animals. Next is, if the compound of arsenic is finely divided and in soluble form. कंपाउंड ऐसा प्रिपेयर किया गया है जिसके ग्रेन्यूल्स बहुत छोटे हैं और बहुत soluble form में है, तो that is going to be more toxic in comparison to those compounds जहाँ पे granules बहुत बड़े हैं और solubility less है, तो वहाँ पे toxicity के chances कम हो जाएंगे, मगर जितना soluble arsenic compounds होगा, toxicity will be more in that case. Okay. And next, as I was telling you, the condition of the animals also decide. If the animal is weak, dehydrated, stressed, and in poor body condition, it is more chances that these animals will be affected in comparison to those animals which are healthy. So the chance in healthy animals is least, but in stressed and weak, and those animals which have poor body condition, the chance of toxicity is. And now we'll talk about toxicokinetics. अभी तक जो हम लोग बातें किए उसमें क्लियर है ना आप लोग regarding source and mechanism of toxicity? Yes sir, yes sir. Okay. अब हम लोग बातें करेंगे mechanism, toxicokinetics yes sir. and toxicodynamics. So toxicokinetics क्या है? Absorption and secretion. What is toxicokinetics? Absorption, metabolism and absorption, metabolism and excretion. In simple words, of toxins. In simple words, toxicokinetics indicates the absorption of the toxin and its distribution in the body and reaching to their target site, target tissue. बॉडी में जाना, एब्जॉर्ब होना, अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचना, ये जो मूवमेंट है टॉक्सिन्स का, बोलते हैं टॉक्सिकोकाइनेटिक्स. तो इसमें आप सही कह रहे हो, इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, उसका एक्सक्रीशन पढ़ते हैं. तो नेचुरली एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? तो कहीं से भी हो सकता है, फ्रॉम ऑल बॉडी सरफेस, इवन फ्रॉम द स्किन, इवन फ्रॉम इंजेक्शन, इवन फ्रॉम इनहेलेशन. ड्रिंकिंग वाटर से जा सकता है, इनहेलेशन से जा सकता है, फीड से जा सकता है, इवन स्किन टॉनिक से एब्जॉर्ब हो सकता है. तो किसी भी रूट से जाने का है आर्सेनिक. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, once it's get inside the body, it is distributed in the whole body system. In the whole body system, it will be distributed. But the more concentration will be found in liver, kidney, heart, and lungs. These four vital organs are. These four vital organs are more susceptible for their precipitation.
that is liver, kidney, heart, and lungs. Other than these 4 vital organs, heart and lungs. Yes, sir. we use nails and hair for diagnosis purpose for arsenic concentration. Nails and hair. So because in nails and hairs, Yes, arsenic has the tendency to precipitate in heavier amount. क्यों होता है ऐसा? Because in nail and hair there is sulfhydryl content. और ये sulfhydryl क्या करते हैं? It has the affinity for arsenic. आर्सेनिक का ये एफिनिटी होता है टू बाइंड कर जाए सल्फाइडल कंटेंट। जहाँ पे सल्फाइडल कंटेंट ज्यादा होंगे, नेचुरली नेल्स और हेयर्स में क्या होता है कि वहाँ पे रेगुलर ग्रोथ होती है। रेगुलर ग्रोथ होता रहता है तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो मतलब कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है नेल्स में, हेयर में, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होना चाहिए। तो ऐसे सेल से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होता है, और नेचुरली माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें सल्फाइडल ग्रुप बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी की वजह से हेयर्स और नेल्स में आप देखोगे आर्सेनिक का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। इसका मतलब ये हुआ दैट कैन लीड टू इवन एबॉर्शन, दैट कैन लीड इवन टू द फीटस। यस सर, पास ये क्षमता है कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते। यस सर। और मैंने कहा कि ये बॉडी के किसी भी सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसी तरीके से बॉडी के किसी भी सरफेस से निकल सकते हैं। yes, किसी भी प्रोसेस से बाहर हो सकता है, यूरिन से भी बाहर जा सकता है, फीकल मटेरियल से भी आ सकता है, बाइल से भी आ सकता है, मिल्क में भी एक्सक्रीट हो सकता है, सलाइवा में एक्सक्रीट हो सकता है, इवन स्वेट में भी एक्सक्रीट हो सकता है। जितना आने का रूट है उससे ज्यादा इसका एक्सक्रीशन है। ठीक है। और रिगार्डिंग ओरल डोज दैट विल लीड टू मॉर्टेलिटी, सबसे ज्यादा सोडियम आर्सेनेट in dose rate of 1 to 25 milligram per kg is lethal. And cats are more sensitive for sodium arsenate, but livestock are 5 to 10 times less toxic. Regarding arsenates are less toxic than arsenites. Okay? Arsenite preparation जो होगा वो ज्यादा टॉक्सिक होता है। Yes sir. Comparison to arsenates, यानी उनका जो आयनिक स्टेट है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी डिसाइड करता है कि कौन कितना ज्यादा टॉक्सिक हो। यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्सेनाइट्स आर मोर टॉक्सिक देन आर्सेनेट्स। ठीक है। तो इन वेरी ब्रीफ इट वाज द टॉक्सिकोकाइनेटिक्स प्रोसेस को और डिटेल करें हम रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। वंस इट गेट्स इनसाइड द बॉडी एंड डिपॉजिटेड ऑन इट्स ऑर्गन है जहाँ पे उनका प्रेसिपिटेशन होता है, तो क्यों होता है, क्या डैमेज कॉज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उस ऑर्गन में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा जहाँ पे सल्फाइड्रिल ग्रुप हो। सल्फाइड्रिल ग्रुप से एफिनिटी होता है आर्सेनिक का। और ये सल्फाइड्रिल ग्रुप्स किसमें पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम्स है, पार्टिकुलरली पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट जानते हैं आप? व्हाट इज पायरुवेट का नाम सुना है आपने? पायरुविक एसिड का जो क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में जो साइटोप्लाज्म पायरुवेट ये सर क्रेब साइकिल से एक स्टेप पहले जो है में हेल्प करते हैं। हां, क्रेब साइकिल से एक स्टेप पहले जो है यहाँ पे उसके बाद हां एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट वहां से स्टार्ट होता है। टूटते हैं। यस सर। उसके लिए जरूरत पड़ती है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ता है, साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो एंजाइम चाहिए दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इनिशियल स्टेप तो यही है, पायरुविक एसिड में टूटेगा तब क्रेब साइकिल में जाएगा ये। तो अगर इस एंजाइम का एफिनिटी है आर्सेनिक का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड्रिल ग्रुप्स, तो नेचुरली जब आर्सेनिक कंबाइन कर जाएगा तो ये एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और ये प्राइमरी एंजाइम था ग्लूकोज ब्रेकडाउन एनर्जी रिलीज करने के लिए फॉर्मेशन। अगर अपने प्राइमरी एंजाइम को ही डीनेचर कर दिया तो पूरा का पूरा सेल साइकिल रुक जाएगा। तो यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ गया कि एटीपी प्रोडक्शन में हैम्पर करेगा आर्सेनिक। ठीक है, क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ग्लाइकोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइनली एटीपी।
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एटीपी का फॉर्मेशन कम हो। एक तो ये होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इट इज ऑल्सो ए कैपिलरी पॉइजन। इसका मतलब ये हुआ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी वाल। कैपिलरी वाल में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उस पे ये डैमेज कॉज करेगा, और जब डैमेज कॉज करेगा तो कैपिलरी का परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इफ परमिटिविटी इंक्रीजेस द सराउंडिंग एरिया एडिमेटस हो जाएगा, और साथ में ब्लड भी एस्केप करेंगे, दैट विल लीड टू हेमरेज। यानी ऐसे ऑर्गन्स जहां पे इसका ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो इसका टारगेट ऑर्गन है, देयर यू कैन सी द एडिमेटस ऑर्गन एंड हेमरेज इन दैट ऑर्गन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएम कर रहे हैं ऐसे केस का जो डेथ हो गया ड्यू टू आर्सेनिक टॉक्सिसिटी, तो लीजन्स में क्या बता पाओगे? एट दिस स्टेज क्या दिखेगा? एडिमेटस लीजन दिखेगा। हाँ, पर्टिकुलरली लिवर, किडनी, लंग्स और कैपिलरी। हाँ, ये सब आपको दिखेंगे, बिल्कुल एडिमेटस दिखेगा, और उसमें पिन पॉइंट हेमरेजेस दिखेंगे। यस सर, एडिमेटस दिखेगा। ऑन एंड होल पूरी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि कैपिलरी तो हर जगह पे ही है, कैपिलरी हर जगह पे है, लेकिन ऐसे ऑर्गन जहाँ जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे ये चेंजेस ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस हर जगह पे दिखेंगे, जैसे हाइपरेमिया एंड हेमरेज इंटेस्टाइन में भी दिखेगा, ठीक है। अब जैसा मैं वहां पे आपसे कह रहा था, ये आप जो कह रहे थे क्रेब्स साइकिल, यस सर आ रहा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जानते हो कि ग्लाइकोलाइसिस में है इसका इंटरफेरेंस है, इट इंटरफेयर विद ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोनियोजेसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर। नेचुरली हो जाएगा जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में इंटरफेरेंस होगा तो लीवर में फैटी डिजेनरेशन, ठीक है। आप जानते हो किडनी में भी इसका प्रेसिपिटेशन होता है, किडनी इसका टारगेट ऑर्गन है अदर देन लिवर। In the kidney you can see the tubular necrosis, जो renal tubular epithelial cells हैं that will undergo death, necrosis, ठीक है। Other than liver, kidney, intestine, it also affect peripheral nerves, nerve system पे भी इसका है effect, leading to depression of the nervous system. Next, जो आपने भी पढ़ा, जो आपने देखा कि इस तरह से इफेक्ट करता है, उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है हमने। इफ द कंपाउंड इज ट्राइवेलेंट आर्सेनिक, कंपाउंड मे बी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, तो इफ इट इज ट्राइवेलेंट आर्सेनिक, नेचुरली इट इज गोइंग टू बाइंड विद सल्फाइडल ग्रुप्स, जैसा मैं अभी कह रहा था, एंड इट विल फॉर्म ए स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग, एंड फाइनली इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो यही लिखा है हमने, बाइंड से 2 सल्फाइडल ग्रुप्स ऑफ लाइपोइक एसिड and it form a complex that is very stable and it will lead to the inhibition of glucose breakdown, okay. Regarding trivalent arsenic, this is the mechanism of toxicity. And what is this lipoic acid? It is a sulfidal containing cofactor and it is needed for the enzymatic decarboxylation of keto acid pyruvate or keto glutarate. तो ये जो लाइपोइक एसिड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रेब्स साइकिल का, उसका डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली इट विल लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट ट्राइवेलेंट हुआ था पेंटावेलेंट इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, पेंटावेलेंट इनऑर्गेनिक आर्सेनिक। So it is also going to block the mitochondrial oxidative phosphorylation and therefore there will no. Next is pentavalent organic arsenicals. That was pentavalent inorganic arsenicals. This is pentavalent organic arsenicals. So these chemicals interfere with vitamin B and therefore lead to demyelination and some neuropathy. Since vitamin B is necessary, particularly B1 is necessary for nerve formation, myelin formation of the nerve. विटामिन B1 थायमिन का डिफिशियंसी हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है बॉडी में, इट इज गोइंग टू कॉज न्यूरोपैथी। नेक्स्ट इज आर्सेन गैस। आर्सेन गैस डू नॉट रिएक्ट विद द सल्फाइडल ग्रुप, इट रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन। सो अगर इनहेलेशन रूट से जा रहा है आर्साइन, एंड यू आल्सो नो दैट आर्साइन इज मोस्ट टॉक्सिक, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आर्साइन ग्रुप में है, इट इज मोस्ट टॉक्सिक और इमीडिएट डेथ कॉज करेगा।
कैसे इट विल एक्ट विद द हीमोग्लोबिन एंड इट लीड्स टू द Yes. hemolysis, तो आरबीसी ब्रेकडाउन होने Yes, लगेंगे sir. और React एनीमिया with नेचुरली हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। आर्साइन गैस बहुत pulmonary edema or death होगा। Yes, sir. ये बहुत खतरनाक है। And coming to the next topic, it is clinical sign. So clinical sign can appear uh, depending on the dose and route of the इंजेक्शन, किस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ आर्सेनिक का और कितना डोज में गया, इस पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्लिनिकल साइंस आ रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा, इफ द डोज इज वेरी हाई, if the dose is moderately high, and if the dose is very least, accordingly the symptom will be acute, subacute or chronic. ठीक है? In case of acute toxicity, there will be high morbidity and mortality, massive mortality. There will be GIT disturbances leading to colic, diarrhea, atonia of the rumen, vomition. These are some of the important clinical signs that you can see in acute cases. In subacute cases, there will be bloody diarrhea. Acute. Yes, sir. Diarrhea will be very thin, watery, and containing blood and Yes, there will be dehydration naturally, and urination will be very less. So anuria can be seen, depression, dehydration, and diarrhea to occur in subacute toxicity. In chronic condition, the body becomes wasted. It is a wasting disease. There will be excessive thirst. The pulse will be very weak, and there will be some nervous derangement like ataxia, convulsions, incoordination, and blindness. So, for animal point of view, you have to basically concentrate on acute clinical signs. So, in the next slide, I am trying to elaborate the acute poisoning of arsenic. So, if you see acute cases, there will be metallic test. This all point is going to help you in tentative diagnosis of the arsenic poisoning. So the patient will experience, particularly human patient will experience a metallic test. उसके mouth में उसको ऐसा लगेगा सब metal है, जैसे चम्मच मुंह में रख दो किसी का, जैसा फील होता है। Metallic taste, yes sir. Metallic test है और उसके जो ब्रेथ होंगे, जो इनर एक्सलेशन वाले जो एयर होंगे, उसमें आपको गार्लिक लाइक स्मेल है, ठीक है, गार्लिक लाइक स्मेल फील करें। Yes sir. Important है in case of Garlic powder. Yes sir. Even before death, even after death, immediately after death, आपको वहाँ पे इस तरह के स्मेल आएंगे immediately after death, और before death तो naturally death you can see, you can observe this garlic smell, है ना? And there will be xerostomia. What is xerostomia? क्या है? Saliva नहीं होगा मुंह में. Zero means dryness, stomia means mouth, तो dryness of mouth, ठीक है? Next is dysphagia. Yes sir. Yes sir. Dysphagia. Dysphagia means labored, मुश्किल से, और aphasia मतलब खाना. Dysphagia. सांस, difficulty in breathing. difficulty in swallowing. Yeah, मुश्किल. ठीक है. Yes sir. In some case there can be increased salivation, excessive salivation भी हो सकता है, और excessive thirst होंगे, nausea होगा, vomiting का feel होगा, vomition भी हो सकता है, abdomen में pain होगा, profuse thin diarrhea होगा, और stool dark colored और blood होगा, ठीक है. धीरे धीरे वो स्टूल कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है, ऑर्डरलेस हो जाता है, और बहुत ही पतला, जैसे माड़ जिसको बोलते हैं ना, डार्क कलर जो चावल से निकलते हैं, ग्रुएल की तरह, राइस वाइट की. यस सर. एकदम ट्रांसलूसेंट जी. क्लाउडीनेस और बिल्कुल थिक. शुरू में जैसा वो डार्क कलर का होता है, बाद में धीरे धीरे बिल्कुल पतला हो जाता है ना. तो ड्यू टू vasodilatation with transudation of fluid in the bowel, yes sir. in addition to mucosal vesicle formation and sloughing, leads to increased peristalsis. क्या है, क्यों होगा इतना डायरिया? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज्ड पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस क्यों हो रहा है? जो फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, पेरिस्टालसिस मोमेंट, जो कैपिलरी ब्लड वेसल्स को जो डैमेज काउज कर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ल्यूमेन में जमा हो जा रहा है फ्लूइड, जीआईटी ल्यूमेन. वो वेसिकल फॉर्मेशन भी करेंगे सेल में, प्लस इरिटेशन भी काउज करेंगे, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस. वोमिटिंग कैसा होता है? इट इज प्रोजेक्टाइल, मतलब एकदम थ्रो आउट होगा बहुत दूर तक, एंड द कलर विल बी डार्क ब्राउन और येलो, एंड स्टोमक, उसमें जो वोमिटस होगा उसमें स्टोमक के कंटेंट्स हैं, उसमें ब्लड आएगा, उसमें म्यूकस है,
पेट दर्द जबरदस्त होता है, पेट मरोड़ना जिसको इरिटेशन अराउंड द एनस होगा, ठीक है। एंड खासकर ह्यूमन के केस में देखो सीवियर हेडेक होता है, सर चक्कर आता है, आँख के चारों तरफ एडिमेटस फॉर्मेशन हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प्स, ठीक है। और जब किडनी डैमेज होगा तो एनूरिया, ओलिगोयूरिया, यूरिन प्रोटीन का आना, यूरिन में ब्लड का आना, मैंने आपको बताया कि फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर होगा, लॉस ऑफ एयर होगा, स्किन में इरप्शंस होंगे, बहुत जगह बॉडी के ऊपर स्किन में देखोगे कि नेक्रोसिस हो जाएगा, स्किन फट जाएगा, स्किन इरप्ट हो जाएगा, विद टाइम ऐसा दिखता है, इमीडिएटली नहीं बट विद टाइम ऐसा दिखना शुरू होगा। नेक्स्ट इज पीएम फाइंडिंग। एक आर्सेनाइड गैस का आपको बता दूं, मैंने बताया आर्सेनाइड गैस एक्ट्स ऑन हीमोग्लोबिन एंड कॉजेज हीमोलाइसिस। तो नेचुरली जब आर्सेनाइड गैस का इफेक्ट होगा बॉडी में तो हीमोग्लोबिनुरिया होगा, यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगेंगे और सीवियर एनीमिया होगा एंड नेचुरली जॉन्डिस हो जाएगा, यूरिन रेड हो जाएगा, किडनी फेल, हार्ट फेल, है ना, और नर्वस डिजेनरेशन भी दिखाई देगा, डेथ हुआ। आर्सेनाइड गैस इज most dangerous, causing death instantaneously, है ना, और साइन गैस इनहेलेशन से क्या इमीडिएट डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज पीएम फाइंडिंग्स। पीएम फाइंडिंग्स तो इन्फ्लेमेशन मतलब पीएम फाइंडिंग्स में क्या होगा, कैसे आप डायग्नोज करोगे बेसिकली जी। आई थिंक डायग्नोसिस में जैसे आप पीएम फाइंडिंग्स करेंगे, पीएम चेंजेस देखेंगे तो जीआईटी में इन्फ्लेमेशन होगा, हेमरेजेस होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, फिर रप्चर ब्लड वेसल्स होंगे, लीवर इन्फ्लेम्ड होंगे, kidney will appear swollen and pale, ठीक है, kidney will swollen and appear pale, these are all postmortem findings, so all detail and pale. The body will be dehydrated, rigor mortis will last longer, blood staged vomitus and fecal matter, mucous membrane of the small intestine inflamed, stomach red velvety appearance, ये important है objective point of view, stomach का जो mucosa होगा that will appear red velvet, and the vessel organs will be congested, enlarged, swollen, and liver will be particularly showing fatty. तो डायग्नोसिस फाइनली होगा क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे, पीएम फाइंडिंग्स के बेसिस पे एंड यूरिन एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। एनालिसिस तो उधर चीजें तो मैंने डिस्कस कर दिया, क्लिनिकल साइंस क्या है, पीएम फाइंडिंग्स क्या होंगे, थोड़ा यूरिन और ब्लड से रिलेटेड लैब में क्या कर सकते हो। तो इन लैब यूरिन का जब आप करेंगे एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो आप देखोगे कि उसे प्रोटीन दिख रहा है, ये बायोलॉजिकल टेस्ट में पता हो जाएगा, बायोकेमिकल टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। माइक्रोबायोलॉजिकल करेंगे तो आप देखोगे कास्ट मिलेगा, कास्ट क्या होता है, डीनेचर्ड प्रोटीन इन द यूरिन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ कास्ट इन द यूरिन, ठीक है, these are all indicative of arsenic poisoning। और ये सब देख लेना कितने देर में, यूरिन में ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि आफ्टर इंजेक्शन वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी, तो आपको इंजेस्टा में फीकल मटेरियल में मिलेंगे, इसके उम्मीद कम होता है, यूरिन में 24 आवर तक पाया जा सकता है आफ्टर इंजेक्शन, इसलिए यूरिन में देखा जाता है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग ब्लड पिक्चर में देखोगे कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा और माइल्ड इसिनोफिलिया, ठीक है। एंड अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा मिलेगा, बिलिरुबिन भी बढ़े मिलेंगे और यूरिन में यूरोबिलिनोजेन बढ़ा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इन द हेयर्स एंड नेल्स आर्सेनिक का डिपोजिशन होता है, तो अगर मोर देन 300 ppm है या 100 मिलीग्राम आर्सेनिक है पर 100 ग्राम ऑफ स्पेसिमेन, इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ आर्सेनिक। फिर आप एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, और अदर मेथड्स भी हैं जैसे कैलोरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर सकते हो, और लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी हैं। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस नाम जान लो एटलीस्ट, डाइमर कैप्रोल, ब्रिटिश एंटी लिवेसाइड या बैल भी कहते हैं, ये एंटीडोट है, दिस इज एंटीडोट फॉर आर्सेनिक, डाइमर कैप्रोल और बैल, ब्रिटिश एंटी लिवेसाइड, रोज रेट देख लीजिएगा। अदर देन दिस थायोसाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, थायोसल्फेट यूज कर सकते हैं। और इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी ये जनरल जो चीजें होती हैं कि मेट्रिक्स कराइए, गैस्ट्रिक लेवाइस कराइए, उसको वोमिशन कराओ, गैस्ट्रिक लेवाइस कराइए, डिहाइड्रेशन कीजिए, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, ये सब सपोर्टिव थेरेपी है, लेकिन बेसिकली जो ट्रीटमेंट है या जो मेन एंटीडोट है वो डाइमर कैप्रोल ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन नटसेल
ये बाल है रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी। ये मैं ये देख रहा हूँ